વૃદ્ધના આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડ સાથે છેડા કરી કરોડો પડાવ્યા. અઠવા પોલીસે 2 લોકોની અટકાયત કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી. સોમનાથના અકબર મિયા અને સુરતના પિયુષ શાહ વોન્ટેડ જાહેર. સુરત શહેરના વેચાણ ખાતે આવેલ એક જમીન પ્રકરણમાં 2 આરોપીઓની અઠવા પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ આરોપીઓ દ્વારા 72 વર્ષીય વૃદ્ધ એક કુરુષ પટેલની જમીન કુરુષ પટેલના જ બનાવતી દસ્તાવેજો ઉભા કરી અને વ્યક્તિને વેચી આશરે 3.5 કરોડ રૂપિયા ખરીદનાર પાસેથી લઈ લીધા હતા. 72 વર્ષે તેના દસ્તાવેજી પુરાવા બાબતે ગંધાવતા તેમને હજીરા સબ રજિસ્ટ્રારને વાંધા અરજી કરી હતી અને આરોપીઓ હજીરા સબ રજિસ્ટ્રારની કચેરી પહોંચતા 72 વર્ષીય વૃદ્ધ કુરુષ પટેલને જાણ કરાઈ હતી. વાંધા અરજી કરનાર વ્યક્તિ પણ ત્યાં પહોંચી જતા સમગ્ર ભાંડા થયો હતો અને તાત્કાલિક અઠવા પોલીસ સ્ટેશને જાણ કરી આ બંને આરોપીઓને અઠવા પોલીસના હવાલે કરાયા હતા. જમીનના બોગસ દસ્તાવેજો ઉભા કરી દીધા હતા. સુરત શહેરના ભેંસા ખાતે રહે પારસી ફળિયામાં રહેતા એવા પુરુષ પટેલ કે જેમની ભેસાણમાં જમીન આવેલ છે તે જમીન પિયુષ શાહ નામના વ્યક્તિએ ખોટી રીતે તેમના આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડ મેળવી આ જમીનના બોગસ દસ્તાવેજો ઉભા કરી દીધા હતા. કુરુષ પટેલને માર્કેટમાંથી આ વાત મળતા તેમણે તાત્કાલિક ધોરણે જય હજીરા સબ રજિસ્ટર ઓફિસ ખાતે વાંધા અરજી કરી હતી. જે અનુસંધાને 2 આરોપી એવા મુકેશ અને ઝાકીર જેવા હજીરા સબ રજિસ્ટ્રારની ઓફિસે પહોંચ્યા કે તાત્કાલિક પુરુષ પટેલને આ બાબતે જાણ કરાઈ હતી. કુરુષ પટેલ પણ ઓફિસે દોડી આવ્યા હતા. ઓફિસ પહોંચતા જ તેમને અઠવા પોલીસને જાણ કરી હતી. અઠવા પોલીસ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી. પોલીસે કુરુષ પટેલની ફરિયાદ લઈ ઝાકીર નકવી અકબર મિયા કાદરી મુકેશ મેંદપરા અને પિયુષ શાહ વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરેલ હતી. 2 આરોપીઓ અઠવા પોલીસે ઝડપી પાડ્યા. પુરુષ પટેલના આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડ સાથે પિયુષ શાહ નામના વ્યક્તિએ ફોટા સાથે છેડા કરી ઝાકીર અને અકબર મિયાનો ફોટો લગાડ્યો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. જે અનુસંધાને બહુ જ ડોક્યુમેન્ટ બનાવી બારોબાર શોધો કરી 3.41 કરોડ રૂપિયા જમીનના નામે પડાવી લીધા હતા. જો કેવી રીતે આને આ બાબતે ગંધાવતા તેમને તાત્કાલિક ધોરણે કાર્યવાહી કરી આ આરોપીઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જેમાંથી મુકેશ અને ઝાકીર નામના 2 આરોપીઓ અઠવા પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે. જ્યારે અકબર નિયા અને પિયુષ શાહની ધરપકડ કરવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. આ તુર્કીમાં 2 આરોપીઓ મૂળ ગીર સોમનાથના છે જ્યારે અન્ય 2 વ્યક્તિઓ સુરત ખાતે રહે છે. જેમાંથી ગીર સોમનાથના ઝાકીર અને સુરતના મુકેશની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. બીજી તરફ અકબર મિયા અને સુરતના પિયુષ શાહને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. सर किस तरह से जमीन का घोटाला, कितनी बीघा जमीन, कितने करोड़ों की जमीन और किस तरह से ये दस्तावेज करवाने जा रहे थे, कैसे पुलिस ने इनको पकड़ा? ये भैसान गांव की एक 40 बीघा ज़मीन है जो एक पारसी बाबा की ज़मीन है और उन्होंने एक वांदा अर्जी दी हुई थी सब रजिस्ट्रार में कि इस ज़मीन का कोई दस्तावेज कराने आए तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा एड्रेस है, मुझे जान किया जाए. तो सब रजिस्ट्रार के पास जब उस ज़मीन का दस्तावेज कराने के लिए पहुंचा तो उसने वांदा अर्जी को देखा और सब रजिस्ट्रार ने एक्टिवली उनको फ़ोन किया तब पता लगा कि ये जो दस्तावेज करवाने के लिए आए हैं ये वो लोग नहीं हैं जिनकी वास्तव में वो ज़मीन है. तो उन्होंने पुलिस को जान किया. तो वहाँ पे उस समय एक आदमी जो ज़मीन के मूल मालिक के बिहाफ पे ज़मीन का दस्तावेज करवाने आया था उसका नाम जाकिर हुसैन है और ये वेरावल गिर सोमनाथ का रहने वाला है. वो मौके पे पकड़ा गया. दूसरा जो ज़मीन का दलाल था मुकेश मेंदपरा, ये सरथाना एरिया में ज़मीन की दलाली का काम करता है, वो मौके पे था, वो पकड़ा गया. और दूसरे 2 लोग साथ में थे, एक पीयूष शाह और एक अकबर करके. अकबर गिर सोमनाथ का रहने वाला है. ये दोनों वहाँ से पुलिस के आने से पहले भाग गए. तो 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और पूछताछ में सामने आया कि इन लोगों ने कई दिन से मार्च अप्रैल से ये लोग उस ज़मीन को देख रहे थे कि किस तरह से इसका दस्तावेज करवाया जाए. पहले उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट बनाए. पहले उन्होंने आदमी ढूंढा कि जो ज़मीन का मूल मालिक है उसमें मिलती जुलती शक्ल का कोई आदमी चाहिए. तो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि अकबर ने इसमें मदद किया कि ये आदमी एक वेरावल में है जिसकी शक्ल उससे थोड़ी मिलती है. तो उस आदमी को उन्होंने यहाँ पे बुलाया. उसके नाम से RBL बैंक में पहले अकाउंट खुलवाया ज़मीन के मूल मालिक के नाम पे और आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID ये तीनों फेक डॉक्यूमेंट बनाए. जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में इतना सामने आया कि वो अकबर ने बनवा के दिए. पहला खाता उन्होंने RBL में खुलवाया. वो अकाउंट खुलवा के उन्होंने सूरत में ही ज़मीन एक दूसरी पार्टी को बेची थी, उनसे पेमेंट भी ले लिया था पर किसी कारण से वो सौदा कैंसिल हो गया. तो बाद में वो पैसा इन लोगों ने वापस कर दिया और अभी एक दूसरी पार्टी के साथ बात की और दूसरा अकाउंट खुलवाया उसके लिए एक्सिस बैंक में. तो 2 बैंकों में फोर्ज डॉक्यूमेंट के आधार पे उन्होंने अकाउंट खुलवाया और अभी करीब 3 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट, 3 करोड़ 41 लाख रुपए के आसपास वो पार्टी से उन्होंने अपने अकाउंट में रिसीव भी कर लिया. उसके बाद वो दस्तावेज 14 बीघा ज़मीन का अभी दस्तावेज कराने जा रहे थे.
तो सब रजिस्ट्रार के यहाँ पहुँचे तो सब रजिस्ट्रार की तत्परता से ये मामला पुलिस के पास पहुँचा और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। टोटल जो जमीन है सर कितनी कीमत की है और जो मूल मालिक है उसे किस तरह पता चला और जो उसका जो नाम धारण कर दूसरा बंदा बना उसका नाम क्या था, वो जमीन मालिक कैसे बना? ये टोटल 40 बीघा ज़मीन है, उसमें से 14 बीघा का अभी सौदा हो रहा था और ज़मीन के मूल मालिक हैं वो पारसी हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने वांदा अर्जी दी हुई थी, इसलिए सब रजिस्ट्रार ने उनको कॉल किया और इस वजह से ये पूरा मैटर जो है वो सामने आया। अभी दूसरे और पहलुओं की हम जांच कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट खुलवाने में, उसमें पैसा डिपॉजिट करने में किसी आदमी की भूमिका है या नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है या किसी का इंटेंशनल था, इसकी भी जांच कर रहे हैं। और वहाँ से इसको लाने में जाकिर को या ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने में और कोई लोग अगर उनकी भी संलिप्तता है तो उनकी भी हम तपाश कर रहे हैं। जमीन के मूल मालिक के जो मूल मालिक है उनका नाम जो है किस बंदे ने धारण किया है? जाकिर ने हाँ, जाकिर कई दिन से वो नाम धारण करके और वो खुद को माइंड में भी मेकअप कर रहा था कि मैं जो जमीन का मूल मालिक हूँ उसी तरह से बिहेव करना, उसके से रिलेटेड ही जवाब देना, उसको थोड़ा होमवर्क कराया गया था इन लोगों के द्वारा। जो जमीन क्या कीमत थी जमीन की, जो सौदा हुआ और पूरे जमीन की क्या कीमत रहेगी? टोटल 40 बीघा जमीन है। सौदे का एक्चुअल अमाउंट जो है वो एक बार सौदा जिनके साथ हुआ है उनका स्टेटमेंट लेंगे तब सामने आएगा, पर 40 बीघा जमीन है भैसान गांव में और उन्होंने 3,41,000 रुपये एडवांस पेमेंट किया था उसके अकाउंट में, जो कि जमीन के मूल मालिक के नाम से जो फर्जी अकाउंट खुलवा था उसमें उन्होंने ट्रांसफ़र भी कर दिया था एडवांस के तौर पर। टोटल कॉस्ट कितने का होता है अगर पूरी जमीन की बात करें? अराउंड 90 करोड़ के आसपास का ज़मीन, 90 करोड़ से 100 करोड़ का ज़मीन, ये 40 बीघा ज़मीन अगर पूरी का सौदा होता तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से इतनी की। कितने लोग इसमें शामिल हैं पूरे अभी तक के जो? अभी तक 4 लोगों को हमने एफआईआर में नाम लिखा है, उसमें से 2 अरेस्ट कर लिए हैं। बाकी हम तपास कर रहे हैं कि और कितने लोगों की इसमें मिली भगत हो सकती है, तो उन सब एंगल पे जांच की जा रही है और अलग अलग टीम हमारी बनाई गई है इसमें। तो जैसे ही इसमें प्रोग्रेस होती है, जो आदमियों का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। ये जो सर डॉक्यूमेंट फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए हैं उन्होंने, वो और बैंक वालों को पूछताछ जिस आधार पे अकाउंट पर गया उनकी पूछताछ होगी? हाँ, उनकी भी पूछताछ होगी। उनसे कुछ अभी रिपोर्ट हमने मांगी है और अगर ज़रूरत पड़ी तो बैंक के अधिकारियों को बुला के पूछताछ करेंगे।